لگتا بس صرف سب کے دماغ میں ایک نشہ چھایا ہے، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے ان کا کردار بدصورت ہو، چاہے ان کا بدن کرپٹ ہو، چاہے ان کی آنکھیں زخمی ہو، چاہے ان کی زبان 10 سال جوان ہوئی تھی 18 سال میں، 38 سال میں شادی ہو رہی، 20 سال تک ان کی زبان سے گندی باتیں نکلتی رہی، ان کی آنکھ غیر مردوں کو دیکھتی رہی، ان کے ہاتھ غیر مردوں سے ملتے رہے، ان کا بدن زخمی ہوتا رہا، سب چلے گا مگر منہ اچھا ہونا چاہیے، منہ صرف اچھا ہونا چاہیے، منہ دیکھا بول دیا اوکے میری طرف سے اوکے ہے، نہیں دیکھا ماں کیسی ہے، نہیں دیکھا ان کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ جوان ہوئی تھی 18 سال میں، 38 سال میں شادی ہو رہی ہے، یہ 20 سال کہاں گزاری، یا 20 سال کیسے رہی، یا 20 سال کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، نہیں دیکھنا، صرف منہ دیکھنا، پڑھا بے پڑھا عالم جاہل امیر غریب سب کے دماغ میں ایک ہی نشہ چھایا ہے، جب حضور سے ہٹ کے جیے گا اور حضور کے پیغام سے ہٹ کے منمانے ڈھنگ سے کام کرے گا اور یہ بولے گا کہ میرے گھر میں طلاق نہ ہو، میرے گھر میں تکرار نہ ہو، میرے گھر میں مقدمہ نہ ہو، میرے گھر میں لڑائی نہ ہو، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل لقاحت رسید، مصطفیٰ کے خلاف جو کرے گا قیامت تک کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے سارا سکون مصطفیٰ کی غلامی میں رکھا ہے، مصطفیٰ کی بات مان کے گھر میں زندگی گزار تو وہ گھر تیرے لیے جنت کا ٹکڑا بنا۔ کیونکہ آج کل دین اسلام کی بات سنانے کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ پہلے لوگ آتے تھے کہ ہمیں دین سکھائیے، ہمیں جنت جانے کا راستہ بتائیے، لیکن اب زبردستی لوگوں پہ دین تھوپا جاتا ہے، سننے والا کوئی نہیں۔ نعت شریف سننے کے لیے سب نوجوان چلے آتے ہیں اور قرآن حدیث سننے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعت سننے کے بعد تھوڑا سا ان کو مزہ ملتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس لیے نہیں آتی ہے کہ تبدیلی تو اللہ کے رسول کے کلام سے آتی ہے، اور اس کو ہی نہیں سنے گا تو سننے والا بھی سوکھا رہ جاتا ہے اور سنانے والا بھی سوکھا رہتا ہے، سوکھا دونوں سوکھا رہ جاتا ہے۔ اب سنانے والا عاشق رسول ہوتا ہے تو پھر ایک مصرع بندے کو مدینے کے سفر کی آگ لگا دیتا ہے، اور سنانے والا اگر نیک ہو تو ایک ایک جملہ آدمی کے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو حالات دونوں طرف سے خراب ہوئے ہیں، سنانے والا بھی ویسا نہیں رہا جو پہلے تھے، سننے والے بھی ویسے نہیں رہے جو پہلے تھے۔ پہلے 3 دن کا جلسہ ہوتا تھا، دن میں بھی تقریر ہوتی تھی، ہم نے بچپن میں وہ دن بھی دیکھا ہے۔ 3 دن کا جلسہ ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک تقریر ہوئی، پھر نماز قوموں نے ادا کی، پھر تقریر ہوئی، پھر نماز ادا ہوئی، 12-1 بجے رات میں جلسہ ختم ہوا، پھر دن کے 10 بجے بیان شروع ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء آتے تھے، پبلک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سیلاب کی طرح آتی تھی۔ تو پہلے ذوق تھا دین سیکھنے کا، اور ابھی تو خوشامد کر کے پکڑ کے لانا پڑتا ہے۔ چلیے جیسے بھی ہو، مگر نماز تو بند نہیں ہوگی، چاہے ایک ہی بندہ پڑھے، کوئی نہیں پڑھے پھر بھی اذان بند نہیں ہوگی۔ قیامت آ جائے گی مگر اذان بند نہیں ہوگی، چاہے دشمن حکومت بن جائے، چاہے ہمارے ہی گاؤں کے سارے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، مگر امام اور مؤذن تو مسجد میں رہیں گے، اذان ہوگی اور جمعہ کی نماز بھی ہوگی، تقریر بھی ہوگی، جمعہ کے دن خطبہ ہوگا 5 منٹ کا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، چاہے ایک بھی بندہ سدھرے نہ سدھرے تقریر بند نہیں ہوگی، اذان بند نہیں ہوگی، چونکہ یہ ضروری ہے۔ اس لیے لوگ سمجھیں نہ سمجھیں مگر جلسہ بھی بند نہیں ہوگا، یہ دین کا کام ہے، ہوتا رہے گا۔ کسی کی گردن میں چادر ڈال کے نمازی بنانا یہ نہ کسی مولانا پہ ضروری ہے، اور یہ کام نہ کسی نبی پہ فرض تھا۔ نبی بھی اللہ کا کلام لوگوں کو سناتے تھے، انہی لاکھوں میں سے 2-4 لوگ کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتے تھے، اور آج بھی یہی کام عالم دین پر ہے، یہ بھی قرآن حدیث ہی سنائے، باقی اپنے باپ دادا کی کوئی بات نہ سنائے۔ جب قرآن پڑھ کے بندہ نہیں سنبھلے گا تو دنیا میں قرآن سے بڑھ کر کون سا کلام ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تو زبردستی کسی کو مار کے پیٹ کے نمازی بنانا یہ کسی نہ نیتا پہ فرض ہے نہ کسی مولانا پہ، بس صرف سمجھاتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے۔ قرآن پڑھ کے سمجھائیں، انہی لاکھوں میں سے 2-4 لوگ کھینچ کے نمازی بھی بنیں گے اور پرفیکٹ
मुस्लिम भी बन जाएंगे। उसी की सूरत है महफिल मिलाद में खिताब, जुमा का खिताब, ईदैन का खिताब, जलसो जुलूस का खिताब। अब रही बात, सिस्टम से कोई काम होता है तो उसका फायदा थोड़ा ज्यादा होता है, और सिस्टम के हट के कोई काम होता है तो उसका फायदा बिगड़ जाता है। जैसे एक शौहर अपनी बीवी को कहता है कि तुम नमाज पढ़ो, और वो नमाज नहीं पढ़ती है। ये बोलेगा घर मेरा, जमीन मेरी, महर की रकम मेरी, पैसा मेरा, तुम्हारे बदन की साड़ी मेरी, तुम्हारे हाथ की चूड़ी मेरी, तुम्हारे पाँव की चप्पल मेरी, जिस घर में रहती हो वो घर मेरा। फिर मेरी बात क्यों नहीं मानोगे तुम? मार के ठीक कर देंगे, नमाजी बना देंगे। सब कुछ तो मेरा है, तीनों टाइम खाना मेरे यहाँ खाती हो, मैं पसीना बहाता हूँ, मैं हल चलाता हूँ, मैं बाहर में ठेला चलाता हूँ, घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ेगी? तुमने क्यों नहीं बनेगी? अगर नहीं बनेगी तो मार के खाल खींच लेंगे। अगर मारने से ही ये काम हो जाता तो जितने भी शौहर हैं सब की बीवियां नमाजी हो जाती। मारने से काम नहीं चलता है। काम कैसे चलता है? आप शौहर हैं तो क्या हुआ, सिर्फ अच्छी बातों से काम चलता है, सब्र से काम चलता है, और उन्हें नमाजी बनाने से पहले शौहर खुद नमाजी बन जाए तो जो काम लाठी और डंडे से नहीं निकल पाता है वह काम सिर्फ शौहर के कैरेक्टर को देखकर निकल आता है। तो शौहर का किरदार, अच्छी बात है, अल कलिमतु तय्यबतु सदक़तुन, अच्छी बात बोलना यह सदका है। अच्छी बात से तो पत्थर भी पिघल जाता है, अच्छी बात से शरीर किस्म के जानवर भी फरमाबरदार हो जाते हैं। अब घर कैसे संभलता है? क्योंकि हुजूर हमारे लिए मॉडल है, अकाल इस्लाम पूरी कायनात के लिए मॉडल है और आइडियल है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा मुअस्सिर बात मुस्तफ़ा की होती, और सबसे ज्यादा हुजूर का जो कैरेक्टर है वो पूरी दुनिया में सब पे हावी और गालिब है। यूरोप के दानिश्वर भी क्यों कहते हैं कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूं। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है मगर हुजूर को उन्होंने पढ़ा है, हुजूर की सीरत पढ़ा है, हुजूर की बायोग्राफी पढ़ा है, सरकार की मुक़द्दस जिंदगी को पढ़ा है, इसलिए वो अकीदत वाले जुमले कहने से अपने आप को रोक नहीं सकता है। अब कैसे नहीं, जरा उनका स्टेटमेंट सुनिए, वो हुजूर को कैसे लाजवाब कहते हैं। हम लोग तो नात सुनने के बाद मुस्तफ़ा को लाजवाब कहते हैं और सुनते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन काफिर है जो कलमा नहीं पढ़ा है वो कैसे लड़का है बंदर, देखिए उस सर पे टोपी भी नहीं हो उसकी। जरा गौर कीजिए कैसा समाज हो गया। जलसा जुलूस है, कव्वाली की महफिल तो नहीं है, जलसे में नात होगी या तकरीर होगी ही ना होगी, और कुछ तो नहीं होगा। जब नात होगी तकरीर होगी तो कैसे बच्चे हमारे हैं जो नंगे सर महफिल मांगे बैठे। कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि अदब और डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बेशुमार लोग हैं जो नंगे सर हैं सिर्फ इसीलिए कि बस गुटखा खाते खाते आगे महफिल में बैठ गए और नात सुनी और भाग गए, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि दीन सीखना हम पर ज़रूरी है। चाहे जैसे जिए मगर जीना है, मर जाना है, और क्या करना है। जीने की कला आज हिंदू लोग सीखते हैं। रविशंकर का नाम नहीं सुना होगा आपने, बहुत बड़ा उनका प्रवचन देने वाला है, बहुत बड़ा उनका धर्म गुरु है। लाखों लोग महफिल में बैठ के उनकी तकरीर सुनते हैं। जो लोग 72 घंटे तक सिर्फ एक ही बात रटता रहता था, जानते हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो 72 घंटे तक एक ही बात रटता था, 72 घंटे तक, और आज भी कहीं कहीं होता है 70 घंटा 72 घंटे तक एक ही बात रटते रहना है। उसी को चाहे गाने के तरफ पे पढ़ना है या कव्वाली के तरफ पे पढ़ना, जैसे हो उसी एक चीज को रटते रहना है, झाल बजाना है। तो झाल बजाने वाला अभी 1-1 लाख की महफिल में बैठकर रविशंकर से प्रवचन सुनता है कि तुम ये बताओ कि मैं एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजारूं। जीने की कला, उसका वो बताते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीने की कला। हम पैदा हुए, रोजाना खा रहे हैं, शादी ब्याह किया, 5 बच्चा पैदा किया, बूढ़ा हुए, मर गए, चला गया। तो खाना पीना ये काम तो जानवर भी करता है, उसके भी 10-20 बच्चे होते हैं। हमसे ज़्यादा खाना जानवर खाता है, हमसे ज़्यादा बच्चे जानवर पैदा करते हैं। हम लोग तो 10-20 साल में 4 बच्चे पैदा करते हैं, जानवर तो हर साल 10-10 बच्चे पैदा करता है। जैसे कुत्तों के बच्चे, सुअर के बच्चे, बकरी के बच्चे देख सकते हैं। तो खाली पैदा खाना और सोना, बच्चा पैदा करना, मर जाना, ये काम तो जानवरों का है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है।
अशरफुल मखलूक़ात इस माना कर है कि इसका खाना जानवरों से अलग थलग, इसका रहना सहना जानवरों से अलग थलग, एक कामयाब अच्छी जिंदगी गुजारना यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो आज हम लोग जिस बात को 1400 साल से दुनिया वालों को बता रहे हैं, यही बातें हमसे छीन करके वो आज बता रहे हैं। तो उनके लोग जो महफिल में रहते हैं, सुनने वाले डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, तो फिर 15-20 साल पढ़ने के बाद ये रविशंकर से क्या सुनने के लिए बैठा है महफिल में? मैट्रिक 10 साल में बच्चे पढ़ते हैं, तब वो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देता है। इंटरमीडिएट में 2 साल लगते हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल लगते हैं, और पीएचडी करने में 3-4 साल लगते हैं। अब आप जोड़ लें कि 1 से लेके पीएचडी करने तक कितने साल है? क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन किया, मैंने भी पीजी किया, मैंने भी इंटरमीडिएट किया है, कितने लंबा सा लगता है सब कुछ मुझको मालूम है। यानी 25 साल एक बंदे को लग जाता है एमए करने में, अब पीएचडी करने में। उसके बाद जब वो सब कुछ जान ही गया है, तो फिर वो रविशंकर की महफिल में बैठकर उनसे वो क्या सुनता है, क्या सीखता है? वो क्या सीखता है? क्योंकि जो जितना ज्यादा मुताला करता है उसका सीना इतना कुशादा होता है कि वो अपने से बड़ों से अच्छी बातें सुनना चाहता है। वो पढ़ना और है और दूसरों की जबान से सुनना और है। यही वजह है कि सुनने सुनाने का माहौल मरते दम तक रहता है। और ये हदीस पाक में भी ये बात आई है, आका अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल हुआ है, उनसे बेहतर कोई कुरान नहीं पढ़ सकता दुनिया में। मगर हुजूर ने अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद, तुम मुझको कुरान सुनाओ, अल्लाहु समद, तुम मुझको कुरान सुनाओ। कहा हुजूर आपसे बेहतर कुरान कौन पढ़ेगा? कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, आपको मैं कैसे सुनाऊं? मगर हुजूर ने क्या कहा? मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने कहा कि रुक जाओ, इशारा किया रुक जाओ। जब अब्दुल्ला इब्न मसूद रुक गए और निगाहों को उठा के देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे। सरकार की आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे। खुद जिन पर कुरान नाजिल हुआ हो और वो कुरान दूसरों से सुनने के बाद आंसू बहा रहे हैं, इसका मतलब कुरान पाक है ही वो कलाम जिसको आंसुओं के साए में सुना जाए। तो हुजूर ने क्या कहा? मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। तो 1000 हाफिज कुरान रहे मगर महफिल में बैठकर अपने से बड़ों से सुनना चाहते हैं। 1000 बंदा पढ़ा लिखा आदमी रहे मगर वो दूसरों से सुनने के बाद उनका दिल पसीज जाता है, नर्म होता है। बोलने में तो आदमी की पूरी तवज्जो बोलने पे होती है, लेकिन सुनने में पूरा फोकस सर से लेके पांव तक सारा पार्ट्स उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कर देता है। वो ज्यादा इंप्रेसिव होती है वो बात, यानी जो बात कहने से नहीं सुनने के बाद आदमी असरअंदाज हो जाता है। यही वजह है कि नसीहत करना, सरकार दो जहां की बात आज भी समाज बदल देती है, आज भी आदमी की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देती है। एक हदीस पाक आदमी की जिंदगी में यू टर्न ले आती, चूंकि हुजूर की सारी बातें मैचलेस है, लाजवाब है। सिर्फ दिल उसके लिए चाहिए, दिल थोड़ा सा सॉफ्ट और नर्म रहा तो फिर उसके बाद उसके असरात आप देखेंगे। कैसे उन्होंने कहा कि मैं जब इस्लाम के पैगंबर को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि इस धरती पर इन जैसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ। ये अकीदा हमारा है, मगर ये कहता कौन है? जिसने हुजूर को पढ़ा है, हुजूर से सीखा है। हमारा समाज अभी आलिमों का सम्मान नहीं करता, यही वजह है कि हमारा समाज उजड़ गया। हमारा समाज गवैयों का, जोकर का, क्रिकेटर का, फिल्म के एक्टर का, नाचने गाने वाले का खूब सम्मान करता है। यही वजह है कि हमारे बच्चे एक्टर, जोकर, क्रिकेटर ये बनते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान, कामयाब इंसान कभी नहीं बन रहे हैं, चूंकि उनकी तरबियत ही इसी माहौल में होती है। गाने बजाने, दुनियादारों को देखने, आलिमों के खिलाफ गीबत का माहौल है हमारे समाज में कि आलिम के चक्कर में मत पड़ना वरना तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी रखवा देगा, जवानी में बूढ़ा बना देगा। और फिर उनके यहाँ माहौल जस्ट अपोजिट बन गया है। अपने धर्म गुरु का सम्मान करना, धर्म गुरु का पांव छूना, धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे लेके आशीर्वाद लेना। जो बेचारा कुछ भी नहीं जानता है, प्रधानमंत्री उनका पांव चूम रहा है। अभी साहब अयोध्या में जितने भी पंडित लोग हैं, सारे पंडित को उत्तर प्रदेश का आदित्य जोगीनाथ जब वो जाते हैं तो पंडितों, वो खुद पंडित है मगर दूसरे पंडित का पैर छूता है।
प्रधान मंत्री, जबकि वो खुद बहुत बड़ा हिंदू मजहब का एक बहुत बड़ा झंडा उठाने वाला है, वो दूसरे शंकराचार्य का पैर छूता है, अपना उनका हाथ अपने सर पे रखता है। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है, और ये चीज हमसे काफिरों ने ले लिया। बाप का अदब, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम के बच्चे अपने बाप का पांव चूमते हैं, अक्सर समाज में आप देखे होंगे, मगर हमारे बच्चे माँ बाप को तिरछी निगाह से देखते हैं, उस पर आंख जैसे बाप को निगल जाएगा, जैसे ये बाप को खिला करके बहुत बड़ा एहसान कर रहा है बूढ़े बाप को, जबकि आया है कि इन बूढ़ों की वजह से तुम पाले जाते हो। ये एहसान मत जताओ कि बूढ़े को मैं पाल रहा हूं, बल्कि अगर बूढ़े का ख्याल ना हो, बेज़बान जानवर का ख्याल ना हो, तो अल्लाह आसमान से बारिश न बरसाए। बारिश रुक जाती है जब जमीन पे पाप बढ़ता है, तो मगर जानवरों की वजह से अल्लाह पानी बरसाता है। ये गाय, ये बकरी, ये बिल्ली, ये चूहा, ये सांप, ये शेर, ये गीदड़, ये बेज़बान है। इन बेज़बान जानवरों की वजह से पानी पड़ता है आसमान से, जमीन से घास उगती है। इन जानवरों के सदके में ये पापी इंसान पाले जाते हैं। ये आया है कि वरना इस इंसान को तड़पा के मार दिया जाए, जो अल्लाह की जमीन पे रह के काम सारा शैतान का करे, अल्लाह की रोजी खा के अल्लाह के दुश्मन की मर्जी के मुताबिक वो जिए, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेके शैतान की पैरवी करे, उसे तो अल्लाह तड़पा के मार देता। आया है हदीस में कि जब समाज में ज़िनाकारी फैलती है तो अल्लाह इतना नाराज होता है कि जैसे कि वो आसमान को जमीन पे गिरा दे, बंदों को पीस दे, सलसले में लोगों को जमीन में सड़ा दे। लेकिन चूंकि अल्लाह हिल्म वाला हलीम है, अल्लाह हिल्म से काम लेता है। हिल्म का मतलब सब्र से काम लेता है। अल्लाह का नाम सबूर है, अल्लाह का नाम हलीम है, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। वरना समाज में जहां 99% बेनमाजी मौजूद है, उस समाज को तो जीने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि तीनों टाइम खाना हम अल्लाह का खाते हैं। हमारे अंदर जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, ये अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन है। सिर्फ अल्लाह 1 घंटा के लिए हवा को रोक दे, 200 करोड़ लोग दुनिया के बगैर पानी के मछली की तरह तड़प के मर जाएंगे। सिर्फ अल्लाह हवा को रोक ले। चूंकि बंदा इस पॉइंट पे गौर ही नहीं करता, सोचता है कि खाना मेरा हक है, सांस लेना मेरा हक है। इसका पता उस वक्त चलता है जब बंदे को ऐसी बीमारी लगती है जिस बीमारी में सांस लेने में दिक्कत होती है। उस वक्त वो बगैर पानी के मछली की तरह तड़पता है, हाथ पांव जमीन पे रगड़ता है। उस वक्त समझता है कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत थी, जिस नेमत को मैंने भुला दिया, और अब उसी ऑक्सीजन के लिए मैं तरस रहा हूं कि काश सांस ले सकूं, नहीं ले पाता है, मर जाता है। सारी नेमत अल्लाह की, जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, सूरज और चांद अल्लाह के, पानी अल्लाह की नेमत, हवा अल्लाह की नेमत, आग अल्लाह की नेमत। लेकिन ये बंदा जीता कैसे है, जबकि 100% को नमाजी बनना चाहिए। जिस रब ने मुझको रोजी दिया उस रब को मुझ सजदा करना है। फजर की नमाज है, रात भर की नेमतों का शुक्राना है कि रात भर अल्लाह ने मुझे नींद लेने का शानदार मौका अता किया। अब सुबह उठकर सबसे पहला काम अल्लाह की इबादत, जिस रब ने मुझे रात की गहरी नींद अता की। अब पिछले दिन जो मैंने काम किया था, सारी थकावट को मैं भूल गया। नींद इतनी बड़ी नेमत है कि अरबपति से पूछा, वो दवाई खा के नींद को बुलाते हैं। खरबपति को पूछे, वो दवाई खा के नींद को बुलाते हैं। ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करते हैं उसके, मगर आप बगैर गोली के आप जैसे बिस्तर पर गए फौरन पड़ गए। और नींद हर बीमारी का इलाज है। आज दुनिया में कैंसर बढ़ गया ये नींद की कमी की वजह से। आज दुनिया में शुगर लेवल बढ़ गया नींद की कमी की वजह से। दुनिया में ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज बढ़ गया नींद की कमी की वजह से। दुनिया में साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया नींद की कमी की वजह से। ये सारी बीमारियां हैं। नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां एक तरफ, नींद एक तरफ। हमने बगैर किसी दवाई के बिस्तर पे मैं गया, नींद फौरन आ गई। जब नींद आ गई बगैर दवाई के, जिस नींद को बुलाने के लिए लाखों की दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उसका क्या शुक्र है उस नींद का। यही कि सुबह उठते उठते गाली देने लगे। यही उस नेमत का बदला यही है कि सुबह उठ करके सीधे सिनेमा हॉल चले जाएं। सुबह उठने के बाद सीधे एलईडी टीवी पर गंदी फिल्में देखने लगे। सुबह उठ के दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने लगे। नहीं, अक्लमंदी का तकाजा यह है कि रात भर जिस अल्लाह ने गहरी नींद मुझको दी है, तो अक्ल का तकाजा है कि उठने के बाद सबसे पहला काम
نہ کھیت، نہ کھلیان، نہ دکان. سب سے پہلا کام جس رب نے مجھ کو 8 گھنٹے کی گہری نیند دے کر احسان کیا ہے، سب سے پہلا کام اس رب اعلیٰ کو سجدہ کرنا ہے. عقل مندی کا تقاضا ہی. بھاگے سارے لوگ، بھاگ جائیے، امام صاحب بھاگے، سب لوگ بھاگ گئے. اب ہم رہیے اور آپ رہیے، جلسہ کروا رہے ہیں. جو گھچڑ مچڑ کر رہے ہیں 1 بجے رات تک. اب جو مہمان باہر کے آئے ہیں اس کو جب سارے لوگ تھک کے چور ہو جائیں، اس کو اب 1 بجے رات میں دیجئے اور بولے کہ جلسہ ہمارا فلاپ ہو گیا. جلسہ صرف 2 روپیہ چندہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے اب کیسے انجینئر آئیں، کیسے ڈاکٹر آئیں، کیسے اسکول کے ٹیچر آئیں. اس کو اسکول میں جانا ہے، کل نوکری کرنی ہے، اس کو اپنے کام پہ جانا ہے. پھر کیسے وہ آئے. جلسے کا سسٹم بدلنا ہوگا. وہاں جو ایس پی اور ایم ایل اے اور ڈی ایم آتے ہیں روی شنکر کے یہاں 1-1 لاکھ لوگ، وہ لوگ رات بھر کا جلسہ نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ اپنا سارا جلسہ دن میں کرتے ہیں اور چھٹی کے دن کرتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر صاحب، منتری سب اس کی محفل میں آ گئے. اگر رات میں بھی کرتے ہیں تو 10 بجے محفل ختم ہو جاتی ہے. جس طرح بمبئی میں 1-1 لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں جلسے میں اور 10 بجے 10:30 بجے محفل ختم ہو گئی، سب لوگ سن کے اپنا چلے گئے. اس طرح کا جلسہ اگر ڈیلی ہو تو ڈیلی لوگ آئیں. یہاں سال میں 1 بار محفل ہوتی ہے اور اس محفل میں بھی رات کے 12-1 بجے تک چندہ ہوتا ہے. اور جب لوگ تھک کے چور ہو جائیں اس وقت میں دین سکھانے کے لیے کسی مولوی کو لایا جاتا ہے. اب جلسے کی برکتیں اسی لیے ختم ہو گئی چونکہ مقصد ہی صحیح، ارادہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. ارادہ دین سمجھانا، دین سکھانا، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا، یہ تو ارادہ ہوتا نہیں. ارادہ ہوتا ہے مسجد کی تعمیر کرنا. مسجد کی تعمیر سے بڑا فرض ہے دین سیکھنا. مسجد بنا دیا میں نے 50 کروڑ کا، اس کے بعد دیکھیے کتنے نمازی اس مسجد میں. کیا فائدہ ہے اس مسجد کی تعمیر کا؟ مسجد تو بانس کا کھوٹا گاڑ کے اوپر پھوس کی چھت دیتے ہیں. اگر وہ مسجد نمازیوں سے بھری ہے تو 50 کھرب روپے کی ایئر کنڈیشن مسجدوں سے وہ مسجد بہتر ہے جس مسجد کا پیٹ نمازیوں سے بھرا ہوا. مقصد ہے نماز. تو یہاں لوگوں نے موچ کا مدعا بنا دیا مسجد کی تعمیر. اس کی مسجد میں مینار 100 فٹ کی ہے تو ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. ان کی مسجد میں گرینائٹ اور ماربل لگ گیا تو ہمارے یہاں بھی لگنا چاہیے. ان کی مسجد میں وضو خانہ اور گیزر ہے تو ہمارے یہاں بھی گیزر لگنا چاہیے. صرف نام نمود کے مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے، اس لیے نمازی نہیں ہے، اس کی برکت ختم ہو گئی. قیامت کی نشانی مصطفیٰ نے بتائی ہے. اخیر زمانے میں لوگ مسجدوں پہ گھمنڈ کریں گے اور مسجدوں پہ اترائیں گے. نماز نہیں، مسجد کس کام کے لیے بنی ہے وہ کام نہیں کریں گے لوگ، بلکہ مسجد کی عمارتوں کو اپنی گھمنڈ کا ایشو بنائیں گے. میرا گاؤں، میرا محلہ، میرے محلے میں 5 کروڑ کی مسجد، وہاں گیزر ہے، وہاں اے سی ہے، وہاں کارپیٹ ہے. تو مسجد اے سی اور کارپیٹ کا مقابلہ کی چیز نہیں، وہ تو سجدے کی جگہ ہے. مگر سجدہ ہی لوگ نہیں کریں گے بلکہ مینار اور گرینائٹ پہ گھمنڈ کریں گے کہ کون ہے اس پورے علاقے میں جو میرے گاؤں کی طرف مسجد تعمیر کر کے دکھلا دے. ایک تو گھمنڈ کرنا ایسے ہی برا ہے، اور مسجد پہ گھمنڈ کرنا، مسجد پہ اترانا. سب سے اچھی بستی ہے وہ جس بستی کے 100% لوگ نمازی رہیں. مرد بھی نمازی ہوں، عورتیں بھی نمازی ہوں. رہے ٹوٹی مسجد، رہے زمین کیچڑ والی کہ سجدہ کریں اس پہ تو ناک اور پیشانی میں مٹی لگ جائے، وہ اس ماربل والی مسجد سے بہتر ہے جس مسجد میں مٹی ہو مگر نمازیوں سے وہ مسجد 5 وقت بھری رہتی ہو. مسجد نبوی شریف میں بارش ہوتی تھی تو زمین پہ کیچڑ ہو جاتی تھی، اور دنیا کے سب سے بڑے نمازی محبوب پروردگار احمد مختار آقا علیہ السلام اسی کیچڑ پہ سجدہ کرتے تھے تو سجدے میں مٹی پیشانی پہ لگ جاتی تھی، ناک میں لگ جاتی تھی، اور صحابہ کرام اسی مٹی پہ سجدہ کرتے تھے. ابو تراب، مولا علی کا جو ہے لقب ابو تراب، وہ اسی مسجد نبوی میں وہ گھر سے آئے تھے اور لیٹ گئے تھے. اس میں لیٹ گئے تھے تو پیٹھ میں پوری مٹی ہی مٹی لگ گئی تھی. حضور آئے، کہا یا قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھ جاؤ. مولا علی اٹھ گئے اور حضور نے کیا کہا، اے مٹی والے. چونکہ پیٹھ میں پوری مٹی لگ گئی تھی. یہ ٹائٹل مصطفیٰ نے جو دیا ان کو اتنا زیادہ پسندیدہ ٹائٹل ان کو لگا کہ اب مولا علی ساری زندگی ابو تراب کہلانے لگے. اور جب کوئی ابو تراب یعنی مٹی والا کہتا تھا تو مولا علی بہت خوش ہوتے تھے چونکہ یہ ٹائٹل مصطفیٰ کا دیا ہوا تھا، یا ابا تراب، ابو مٹی والے. تو اب وہ مسجد مٹی والی تھی. نمازی کون تھے؟ صدیق اکبر. نمازی کون تھے؟ عمر بن خطاب. نمازی تھے عثمان ابن عفان. نمازی تھے علی ابن طالب. نمازی اس مسجد میں تھے حسن اور حسین. تو مسجد مٹی کی رہے، نمازی سالڈ رہے.
नमाजी रहे मार्बल जैसा, नमाजी रहे ग्रेनाइट जैसा, नमाजी रहे संग मरमर जैसा, मस्जिद रहे मिट्टी की, नमाजी अगर मार्बल जैसा है तो 24 घंटे उसके गांव में शैतान की आमद नहीं होती है, आसमान से रहमतों की बारिश होती है, फरिश्तों की आमद। तो जिस गांव में जितना कम गुनाह होता हो उस गांव में उतने ही फरिश्तों की आमद होगी, और जिस गांव में जितना ज्यादा पाप होता हो फरिश्ते उस गांव को छोड़ देते हैं। और फरिश्तों की मदद इस कदर हमारी जरूरत है कि उसके बगैर ना कोई फतह मिल सकती है, उसके बगैर ना बरकत आ सकती है, उसके बगैर ना चेहरे पे नूर आ सकता है, उसके बगैर ना औलाद में बरकतें आ सकती हैं। हमारा सारा काम फरिश्तों की वजह से चलता है, इसलिए कि फरिश्ते को अल्लाह ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है और मोमिनों की मग़फ़िरत की दुआ के लिए पैदा किया है। मोमिन के दोनों कांधे पे फरिश्ते रहते हैं, वो हमारी बदी होने के लिखते रहते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन में गश्त करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कहां अल्लाह के चंद बंदे बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, उस महफिल को तलाश करते हैं। उस गरोह मलाइका का नाम है मलाइके सयाहीन, यानी सियाहत करने वाले मलाइका जो ढूंढते हैं कि कहां लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फरिश्तों की ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र, फरिश्तों की राहतों का सबब है जिक्र की मजलिसें। वह ढूंढते रहते हैं, फरिश्ते लाखों करोड़ों की तादाद में फरिश्ते हैं जो रूए जमीन पर गश्त लगा के दीनी महफिल तलाश करते हैं, और जहां महफिल मिली तो वह कहते हैं हुलुम्मु, यानी ए फरिश्तों आओ आओ हमारा मकसद मिल गया। अब चारों तरफ से लाखों की तादाद में फरिश्ते घेर लेते हैं, महफिल में बैठते हैं, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं और पूरी महफिल की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को किस हालत में तुमने छोड़ा? फरिश्ते कहते हैं इलाही वो सब तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह कहता है क्या उन लोगों ने जिक्र के बाद मुझसे कुछ मांगा था? कहा इलाही, जिक्र करने के बाद वो तुझसे जन्नत मांग रहे थे, जन्नत को उन लोगों ने देखा है? कहा नहीं। अगर देख ले तो कहा और तलब में आगे बढ़ जाए। क्या वह लोग किसी चीज से पनाह मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते इलाही हाँ, तेरा जिक्र करने के बाद वह लोग जहन्नम की आग से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह कहता है क्या मेरे बंदों ने जहन्नम की आग को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं। तो कहते हैं अगर देख ले तो क्या हाल हो? अगर देख ले तो जहन्नम से पनाह मांगने में और आगे बढ़ जाएं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में कुरान के बाद जो सबसे बड़ी मोतबर किताब है उसमें यह हदीस पाक एक लंबी हदीस की सूरत में है, जिसका सारांश मैंने पेश किया। आखिर में अल्लाह कहता है फरिश्तों, जब वह लोग दूर दराज से चल के आके एक जगह बैठ के मेरा जिक्र कर रहे थे और जन्नत और जहन्नम को बगैर देखे वह जन्नत मांग रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैंने उन सबों को बख्श दिया है। कहते हैं फरिश्ते इलाही उस महफिल में चंद लोग थे जो जिक्र करने नहीं आए थे, दूसरे काम से आए वहां बैठ गए। अल्लाह कहता है हदीस पाक का आखिरी जुमला है, मुझको याद करने वाले वो खुश नसीब होते हैं कि ला यशका जलीसुहुम, यानी मुझको याद करने वाले लोग इतने खुश नसीब होते हैं कि जो उनके पास बैठ जाए वो भी बदनसीब नहीं होता। यानी मुखलिसों के सदके में बुरों का भला होता है, मुखलिसों नमाजियों परहेजगारों के सदके में बुरों का भला होता है। यह जलसा इसलिए भी मेरी जरूरत है, इन जलसों के जरिए फरिश्तों की आमद मेरे गांव में हो और इस जलसे के जरिए 1000 मुसलमान आए, उस मुसलमानों में बहुत से लोग तहज्जुद गुजार, बहुत से लोग नेक परहेजगार और कमरा बंद करके 40 दिन में 2 खत्म कुरान करने वाले, जिसे मैं पापी समझता हूं, जिसे मैं मुजरिम समझता हूं, मगर वो अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा मकाम रखता है कि रात के सन्नाटे में बंद कमरे में वो 1000 रकात नमाज़े नफल पढ़ता है। इसी बहाने उन खुश नसीबों से मुलाकात होती है, उनके साथ जमीन पर बैठने का मौका मिलता है और हम अगरचे बुरे हैं, उन नेकों के सदके में अल्लाह हम बुरों का भला कर देता है। इसलिए भी इस माना कर भी जलसा हर गांव की जरूरत है, ताकि इस जलसे के बहाने फरिश्तों की आमद हो, इस जलसे के बहाने मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजारों की आमद हो। ऐसा नहीं कि जैसे मैं नंगा हूं वैसे सारे लोग नंगे हैं, नहीं, जिसको लोग नंगा समझता है कितना बड़ा मोहतरम होता है, वह दिखा के नहीं, वो रात के सन्नाटे में कमरा बंद करके जमीन पर पेशानी रगड़ रगड़ के अपने मालिक को राजी करने की कोशिश करता है। समाज में दिखता है कि हमारी ही तरह आदमी है, मगर अल्लाह के नजदीक उसका मकाम बहुत बड़ा होता है। चूंकि हम लोग सिर्फ जाहिर को देख रहे हैं,
चेहरा देखना, चेहरे को सजाना, आईने में सजाना, लिपस्टिक लगाना, पान खाना, अपना सारा गम छुपाने के लिए ढेकारे ले लेके गुटखा खा के चौक चौराहे पे बड़बोले बन से काम लेना। हमसे बड़ा कौन है, हमसे अच्छा कौन खाता है, हमसे ज्यादा जमीन कौन खरीदता है, हमसे ज्यादा मकान कौन बनाता है। यानी हम लोग सिर्फ जाहिर परस्त हो गए, सिर्फ जाहिर को देखने वाले हो गए, बातिन की तरफ से खोखला हो गए। किसी को सम्मान देना, किसी की इज्जत करना, नेकों को सम्मान देना, दूसरों को अपने से बेहतर समझना कि ये मुझसे अल्लाह के नजदीक बेहतर होगा। नहीं नहीं, सिर्फ घर देखना, गाड़ी देखना, चेहरा देखना, चाहे लड़की करप्ट हो, उसके चोर दरवाजे से 3 हमल सरकारी हॉस्पिटल में गिरा दिए गए हो, सब चलेगा, मगर नाक लंबी होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, आंख बड़ी होनी चाहिए, चाहे उनके 4 हमल चोर दरवाजे से गिर गए हो। इस कदर मेरी आंखें कमजोर हो गई, इस कदर में अंदर से ज़मीर मेरा मुर्दा हो गया। मुस्तफा ने कहा था कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, वाला अमतुन सौदा ज़ातु दीनिन अफजल। ये दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा, सबसे बड़ा मुअल्लिम और सबसे बड़ा रिफॉर्मर, सबसे बड़ा पैगंबर ने मुझको पैगाम दिया था कि घर को सजाना है, औलाद नेक बनाना है, अपने घर को अच्छे लोगों से भरना है। तो जिस पेट से बच्चा पैदा होता है, बच्चा तुम्हारे पेट से नहीं पैदा होता, और तुम 2 साल अपनी छाती का दूध बच्चों को नहीं पिलाता है। चाहे नबी हो, रसूल हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सब माँ के पेट से पैदा होता है। माँ मिसले जमीन के है, तो अब उस पेट का अच्छा रहना कितना जरूरी है कि मैं हो, तुम हो, सब माँ के पेट से पैदा हुए हैं। अगर ये माँ ना होती तो ना मेरा बाप पैदा होता, ना मैं पैदा होता। सारे नबी, रसूल, वली सब माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। यहां तक कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जिसका बाप नहीं था मगर माँ थी, माँ के शिकम से वो पैदा हुए हैं, माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। जिस जमीन से फसल पैदा होती है, उस जमीन का सरखेज रहना, उस जमीन का नेक रहना, उस जमीन का उपयोगी रहना जरूरी है। मगर आज नजर जाहिर परस्त, सिर्फ मुखड़ा देखना है, नाक देखना है, आंख देखना है, रंग गोरा देखना है। मौलवी कायनात ने कहा था कि शादी में तुम दीन देखना, तुम अखलाक देखना, सिर्फ मुखड़ा मत देखना। साफ लफ्जों में मुस्तफा ने मना फरमाया कि ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्ने हिन्ना। ये इसको अपने घर की दीवारों पे लिख के रखा है। लगता है कि ये काली कलौटी औरतें, इनकी शादी ही नहीं होगी, जिनका कद थोड़ा छोटा है, ये कुंवारी ही रह जाएंगी। लगता बस सिर्फ सबके दिमाग में एक नशा छाया है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे उनका किरदार बदसूरत हो, चाहे उनका बदन करप्ट हो, चाहे उनकी आंखें जख्मी हो, चाहे उनकी जबान 10 साल जवान हुई थी 18 साल में, 38 साल में शादी हो रही, 20 साल तक उनकी जबान से गंदी बातें निकलती रही, उनकी आंख गैर मर्दों को देखती रही, उनके हाथ गैर मर्दों से मिलते रहे, उनका बदन जख्मी होता रहा, सब चलेगा मगर मुंह अच्छा होना चाहिए, मुंह सिर्फ अच्छा होना चाहिए। मुंह देखा बोल दिया ओके, मेरी तरफ से ओके है, नहीं देखा मां कैसी है, नहीं देखा इनका कैरेक्टर कैसा है। ये जवान हुई थी 18 साल में, 38 साल में शादी हो रही है, ये 20 साल कहां गुजारी, या 20 साल कैसे रही, या 20 साल का बैकग्राउंड कैसा है, नहीं देखना, सिर्फ मुंह देखना। पढ़ा बेपढ़ा, आली जाहिल, अमीर गरीब, सबके दिमाग में एक ही नशा छाया है। जब हुजूर से हट के जिएगा और हुजूर के पैगाम से हट के मनमाने ढंग से काम करेगा और ये बोलेगा कि मेरे घर में तलाक ना हो, मेरे घर में तकरार ना हो, मेरे घर में मुकदमा ना हो, मेरे घर में लड़ाई ना हो, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस मंजिल लकाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कयामत तक कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रखा है। मुस्तफा की बात मान के घर में जिंदगी गुजार तो वह घर तेरे लिए जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। मुस्तफा के खिलाफ करके लोग चाहते हैं कि मेरे घर में सुकून हो, नहीं होगा। हुजूर ने क्या फरमाया कि ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना। जरा गौर से सुनिए इस हदीस पाक को। मुस्तफा ने क्या कहा, सिर्फ हुस्न देखकर इनसे शादी मत करना। साफ लफ्जों में हदीस में आया है, और पहले आया है कि तुनकहुल मरअतु लिअरबा लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। मुस्तफा ने निकाह के ताल्लुक से कैसी लड़की का सिलेक्शन करें
खैर है, सारी बातें हुजूर ने बता दी। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जितने भी डायरेक्शन है जिंदगी में, जितने भी डिपार्टमेंट है जिंदगी में, हर डिपार्टमेंट में मुस्तफा ने रहनुमाई की है। अब इस मामले में भी हुजूर ने कहा है कि शादी में 4 चीजें देखी जाती है। क्या देखा जाता है? हुस्न, खूबसूरती। क्या देखा जाता है? माल। क्या देखा जाता है? खानदान। और क्या देखा जाता है? दीन, अखलाक। तो हुजूर ने कहा मैं तुमको नसीहत करता हूं, फज़फर बेज़ाती दीन, यानी प्रीफर रिलीजियसनेस, दीनदारी को तरजीह देना, प्रीफरेंस देना, फौकियत देना। निकाह में लड़की के सिलेक्शन में या लड़के के सिलेक्शन में दीनदारी को तरजीह देना। दीन कहां है? कोई नहीं पूछता लड़की से कि दरूद ताज पढ़ के सुना, दुआए कुनूत पढ़ के सुना, आयतुल कुर्सी सुना, दरूद इब्राहिमी सुना, कोई नहीं पूछता। सूरे मुल्क पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान मर्द औरत को याद रखना चाहिए और रोजाना पढ़ना चाहिए। कब्र से के अजाब से नजात दिलाने वाली सूरत है सूरह वाक़िया, हर मर्द औरत को याद करना चाहिए। गरीबी से, फाका से बचने का शानदार इलाज है सूरह वाक़िया की तिलावत करना। कोई नहीं पूछता लड़की से सूरह वाक़िया बेटी याद है, सूरह मुल्क बेटी याद है, दुआए कुनूत याद है, दरूद ताज याद है, दरूद रज़विया याद है, दरूद इस्म आज़म याद है। कोई नहीं पूछता। कोई पूछता भी है तो मैट्रिक करी कि नहीं करी, डीएलएड करी कि नहीं करी, टीचर बनी कि नहीं बनी, यही सब पूछता है। जब ये सब तुमने पूछा है और आज जब खेल घर का बिगड़ गया है तो फिर दौड़ के आता है तावीज लेने के लिए, फतवा लेने के लिए, इदारे शरिया, इमारतें शरिया। सारा खेल तो तुमने बिगाड़ा। मुस्तफा ने कहा था दीनदारी को सिलेक्शन करना, मगर तुमने हुस्न का सिलेक्शन शुरू किया। और हुजूर ने साफ लफ्जों में दूसरी हदीस में मना किया कि सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना। ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, यह हुस्न उसे मगरूर बना देगा, यह हुस्न उसे तबाह बर्बाद कर देगा। और जितनी भी जिस हुस्न को तरजीह दिया था, खेल कैसा बिगड़ जाता है। तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़का मिला और किस तरह तुमसे दामन झटक के उनके साथ भाग जाती है। इसलिए तो मुस्तफा ने मना किया था कि हुस्न को सिर्फ तरजीह मत देना। हुस्न के साथ अगर दीन मिला है, माल के साथ अगर दीन मिला है, खानदान के साथ अगर दीन मिला है, तो फिर याद रखना वो अपने काले कलोटे शौहर के साथ जिंदगी गुजार लेगी और किसी गोरे का चेहरा नहीं देख के भागेगी। अगर दीन शामिल रहा तो घर उजड़ेगा ही। तुम 25 साल घर से बाहर रहा, तेरा घर सलामत, तेरी बीवी सलामत, तेरे बच्चे सलामत। अगर तुमने मुस्तफा से हट के सिर्फ मुखड़ा देखा, दूर हो सऊदी अरब में तेरा घर है, तेरा माल है, मगर ना बीवी तेरी है ना तेरा बच्चा तेरा है। सिर्फ तू बोल कि मेरा घर है, नहीं है तेरी बीवी। बीवी बोले कि तू सऊदी अरब मेरा पैसा कमा के भेज, 10 साल के बाद आना। सारा काम तेरा चल रहा है, बच्चे का भी काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है, घर का सारा काम चल रहा है। रहो ऊंट चराओ तुम, तेरे पैसे से तेरे घर में होगी ज़राकारी, तेरे पैसे से तेरे सारे बच्चे होंगे बिगड़ेंगे और बर्बाद होंगे। तब जब घर बिगड़ जाएगा बोलेगा अरे क्या करे, क्या करेगा। मुस्तफा ने कहा था कि हुस्न को तरजीह मत देना, दीन को तरजीह देना। और तुम दीन के हट के फैसला लिया, अब बर्बाद ना होगे तो क्या होगे। अगर मुस्तफा के कहने के मुताबिक अगर तुमने फैसला लिया होता, तेरा दीन सलामत, तेरा घर सलामत, तेरी बीवी सलामत, तेरे बच्चे सलामत, दुनिया सलामत, आखिरत सलामत रहेगी। अब कैसे सलामत रहेगी उसकी एक मिसाल सुन लीजिए। हम लोग भी तो इंसान हैं, आप भी तो इंसान हैं, मगर वह लोग भी तो इंसान थे, वह लोग भी तो जवान थे, उनके दिमाग में भी तो तमन्नाएं दुनिया की थी। वही मदीने पाक गवाह है। मदीने पाक में एक नौजवान की शादी होती है। शादी के बाद इस्लाम ने आवाज दिया इस्लाम बचाओ। नौजवान चंद दिन अपनी बीवी के साथ गुजारने के बाद वो सरहद इस्लाम पे चला गया। अब दुश्मनों से लड़ना है, क्योंकि हम लोगों को खाना पीना है, मर जाना है, मगर जो इस्लाम के लिए एंक्सस है, फिक्रमंद है, उसको नमाज भी पढ़नी है, ज़कात भी देना है, हज भी करना है। और इन सारी चीजों से बढ़कर एक जो जिहाद है, जिहाद जुल्म मिटाना है, कुफ्र मिटाना है, शिर्क मिटाना है। माल ज़कात में माल निकलता है, नमाज में थोड़ा टाइम लगता है, हज में थोड़ा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। जिहाद आदमी अपनी गर्दन दे के करता है, गर्दन काटता है। इसलिए जिहाद सबसे बड़ा कारनामा अंजाम देना है। जिहाद आज 1400 साल के बाद जो हम तक इस्लाम पहुंचा है, हमारे बेशुमार शोहदा ने अपनी गर्दनें कटाई हैं, तब इस्लाम इंडिया में आया है, तब हिंदुस्तान अमेरिका गया है, तब इस्लाम
अमेरिका चाइना पहुंचा है गर्दनों के कटाने के बाद, सारी रुकावटों को दूर करने के बाद। और जब तक आदमी गर्दन कटाने का जज्बा नहीं रखेगा, इज्जत और शान से नहीं जी पाएगा। सारे काफिर इसको डराते रहेंगे। जहां ये शेर की तरह जब दूसरों पर पकड़ने का जज्बा रखा तो सारे गीदड़ भागेंगे। नहीं देखा, अमेरिका को बड़ा घमंड था और इस्राइल को बड़ा घमंड था, मगर चंद मुट्ठी भर जवानों ने उसका गुरूर तोड़ने के लिए जब सुरंग से उस काफिर के मुल्क पे जब अटैक किया तो काफिरों ने कहा था, अरे ये मुट्ठी भर जवान क्या करेगा, 3 दिन में गजा मिटा देंगे, इन नौजवानों को तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन आज 3 महीना होने वाला, उसका कुछ बाल बेका ना हुआ और इसराइल की लाशों की लाशें गिरने लगी। अमेरिका इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वह तो अमेरिका की कॉलोनी है, वह अमेरिका की नाजायज औलाद है। इसलिए हमला यहां होता है, अमेरिका तड़पता है। अमेरिका यहूदियों को तो अल्लाह ने जलील और रुस्वा किया है, उसको सल्तनत कभी नहीं मिलेगी। यहूदियों को कितना जलील किया, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया और मुट्ठी भर लोगों को बचा के कश्ती में बैठा के समंदर में धकेल दिया ताकि मुट्ठी भर लोग जिंदा रहें, ताकि मेरे बाद लोग ये ना बोले कि हिटलर ने यहूदियों को काट के जुल्म किया था। यहूदियों की शरारत, इनकी बदतमीजी को देखकर लोग कहें कि हिटलर ने ठीक किया था, क्योंकि यहूदी शरीर कौम, बदतीनस कौम, नबियों की कातिल कौम, वलियों को ज़बह करने वाली कौम का नाम यहूदी है। और आज सारी दुनिया देख रही है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी को कत्ल क्यों किया था। नन्हे बच्चों, औरतों, बीमारों, कैंसर से पीड़ितों, हॉस्पिटल पे हमला, मरीजों पे हमला, औरतों पे हमला, बच्चों पे हमला। बदतमीज, अगर तेरे पास ताकत है तो हमास के नौजवानों को ढूंढ के निकाल, उसके साथ तू जंग कर, उसको तू मार जो तेरे ऊपर रॉकेट दागा है। ये बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है, ये बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, ये बीमारों ने क्या बिगाड़ा है, ये औरतों ने क्या बिगाड़ा है, या बूढ़ों ने क्या बिगाड़ा है। मगर चूंकि नौजवान को तो खोज नहीं सका, अब अपना गुस्सा उन औरतों पे निकाल रहा है, आम लोगों को मार के निकाल रहा है। दुनिया जान रही है कि किस कदर खबीस मरदूद कौम है ये यहूदी। अब लोग कहते हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी को कत्ल इसीलिए किया था कि यह है ही इस काबिल, इसे ज़बह कर दिया जाए, इसे कत्ल कर दिया जाए। जो रहमो करम की भीख मांगकर फिलिस्तीन की जमीन पे आबाद हुआ था, आज उन्हीं को घर से बाहर निकाल के उसकी जमीन पे कब्जा करके वो शान से रहना चाहता है, रहना चाहता है। मगर मालूम है 3 दिन को जो मिटाने का प्लान देखा था, आज 3 महीना होने वाला है। इस नौजवानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। बेकसूर बच्चे और बूढ़े और बीमार मारे गए हैं। ये बता दिया इन नौजवानों ने, अगर तुझे एटम बम पर भरोसा है, तुझे न्यू टेक्नोलॉजी पे भरोसा है, मुझे भी कुरान, हदीस, अल्लाह, रसूल पे भरोसा है। तो अल्लाह पर भरोसा रखने वाला आज गालिब आ रहा है, एटम बम पे भरोसा रखने वाला मगलूब होता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पर एतमाद, यही मेरी ताकत है। मुस्तफा जान रहमत, यही मेरी ताकत है। कुरान पाक पर ईमान लाना, यही मेरा हथियार है। जब तक हम इन हथियारों से आरास्ता थे, दुनिया मेरी थी, हुकूमत मेरी थी, जहां कदम रख देते थे वहां के सारे गीदड़ जमीन रास्ता छोड़कर मुझे हुकूमत करने के लिए ऑफर करते थे। ईरान पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, रूम पे मुसलमानों का कब्जा हुआ। मुट्ठी भर मोहम्मद इब्ने कासिम चंद हजार को लेकर हिंदुस्तान के सिंध आए, राजा ताहिर की 2.5 लाख से ज्यादा फौजों से टकरा गए। अल्लाह ने हिम्मत देखा, हौसला देखा, अरब छोड़ के हिंदुस्तान आना देखा, फतेह मुबीन नाजिल की। ये 2.5 लाख फौजी धाराशायी हुए और मुट्ठी भर जवान इस पे गालिब आ गए और 1000 साल तक के लिए हिंदुस्तान की जमीन कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दी। अल्लाह हिम्मत देख रहा है, देखना चाहता, अल्लाह हौसला देखना चाहता। यहाँ सारी टेंडेंसी सिर्फ खाने पीने, अच्छा कपड़ा पहनने, घर बनाने, बाल बच्चों को पैसा कमाने के लायक बनाने और मर जाने, इसी पर सारी तवज्जो हमारी मुर्तकिज हो गई। ये काम यहूदो नसारा काफिरों का है कि वो खाए पिए और मर जाए। मुसलमान तो कुरान शरीफ में सूरह फातिहा से लेकर वन्नास तक जितनी भी आयतें हैं, अक्सर आयतों में सिर्फ जन्नत की बात है, अक्सर आयतों में आखिरत की बात है, अक्सर आयतों में जहन्नम की आग की बात है, अक्सर आयतों में जन्नत के बागात की बात है। ये और बात है कि जब से कुरान पढ़ना छोड़ दिया, दिमाग में मकान बनाने का जुनून चढ़ गया और जिस वजह से हम जहन्नम जाएंगे उस काम को छोड़ना चाहिए, तो उस काम को छोड़ के, जन्नत छोड़ के लोग दुनिया में ईंट और कारे का मकान बनाने को फोकस कर दिया। चाहे कुछ भी हो, घर बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना होना चाहिए, जबकि हुजूर ने सख्ती से मना किया था। अब दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा
طلبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ حضور نے کہا تھا جس طرح مری ہوئی بکری کو کوئی آدمی نہیں کھاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کو نماز روزے حج و زکات چھوڑ کر جو طلب کرے اس کی مثال کتے کی ہے، اور دنیا کی مثال مری ہوئی بکری کی ہے کہ مردار کو جانور کھاتا ہے، انسان نہیں کھاتا ہے۔ صاف لفظوں میں کہا تھا کہ دین کے ساتھ اگر کوئی دنیا کماتا ہے، دین کے ساتھ میں، تب تو وہ دنیا اس کے لیے مردار نہیں ہے، لیکن دین چھوڑ کے جو دنیا کماتا ہے، نماز روزے سے ہٹ کے جو صرف مال کماتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کھو کے جو مال کماتا ہے، اس کی مثال کتے کی، اور جو مال کماتا ہے اس میں مال کی مثال مردار کی، مردار کو کتا کھاتا ہے۔ حضور نے دنیا سے نفرت دلانے کے لیے ہی اس طرح کی باتیں کی۔ اور جس مال کو میں بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں، اس مال کے بارے میں قرآن شریف میں سورہ زخرف میں آیا ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اللہ فرماتا ہے اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم کافروں کو اتنی دولتیں دے دیتے، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جس پر وہ چڑھتا، ان کے مکان کے دروازے اور فرنیچر چاندی کی بنا دیتے جس پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھتا، وہ علیہا یتکئون وزخرفا، ان کے گھروں کو ڈیکوریشن سے بھر دیتے، ایڈورنمنٹ یعنی آرائش سے، سونے چاندی سے بھر دیتے۔ کس کے؟ جو اللہ کو گالی دیتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، یہ نہیں نمازی پرہیزگار متقی پرہیزگار نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو میرا منکر ہے، یہ جو میرا باغی ہے، جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے، ان کافروں کو میں اتنی دولت دے دیتا کہ ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا، ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا۔ چونکہ ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں صرف دل ناخواستہ گئے ایک رسم نبھا دیا، قرآن تو چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، مگر قرآن شریف میں سورہ زخرف کا معنی ہوتا آرائش، سونا چاندی، اور اس میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو کافروں کو اتنی دولت میں دیتا، ان کے مکان کی چھتیں اور سیڑھیاں، فرنیچر اور دروازے سب سونے چاندی کی بنا دیتا۔ اللہ آگے فرماتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیتے، اگر ایسا کر بھی دیتے، وہ کافروں کے گھر مکان چاندی کا بنا دیتے، تو سارے لوگ اس کی دولت چاندی کی چھت کو دیکھ کے سب کافر ہو جاتے۔ اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا، مگر اگر میں چاندی کا گھر بنا بھی دوں کافروں کو تو کتنے دن تک وہ اس گھر میں رہے گا؟ کتنے دن تک رہے گا اس گھر میں؟ چند دن، چند دن، چند دن، یعنی 100 سال دنیا کا بچپن، جوانی، بڑھاپا تینوں ہے۔ یہ 100 سال 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک، جو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اب مرنے کے بعد جس دنیا میں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ وہاں کے ایک دن کے مقابلے میں یہاں کا 100 سال کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک سیکنڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی ایک سیکنڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے نماز بھی چھوڑا، زکات میں تاخیر کیا، حج میں مؤخر کیا، روزہ بھی جیسے تیسے رکھا، اور پھر سر سے لے کے پاؤں تک بد اخلاقی کا پتلا بن کے جانوروں کی طرح جیا اور مر گیا۔ دولت بھی اکٹھی نہیں کر پایا، سونے چاندی کا گھر بھی نہیں بنا پایا، 2-4 ہزار ایکڑ زمین بھی نہیں خرید پایا، اور دنیا میں سر ڈھکا تو پاؤں کھلا، پاؤں ڈھکا تو سر کھلا، مکان ہے تو گاڑی نہیں، گاڑی ہے تو بچوں کی نوکری نہیں، نوکری ہے تو داماد اچھا نہیں، اور ہے تو اچھا پڑوسی اچھا نہیں، پڑوسی اچھا تو رشتہ دار اچھے نہیں۔ ساری زندگی حسد میں، جلن میں، کینہ میں، کدورت میں مرتے، جھگڑتے، لڑتے، کیس مقدمہ کرتے، ہاسپٹل دوڑتے، مر گیا، 80 سال عمر ہوئی، اچانک چکر آیا، مرے، اور پھر اب قبرستان چلے گئے۔ کیا ہوا؟ کیا ملا اس جھوٹ بولنے کا؟ اگر جھوٹ بول کر 10,000 ایکڑ زمین خرید لیں تو جانے، اگر جھوٹ بول کر 50 مکان 50 شہر میں خرید لیں تو جانے، اگر جھوٹ بول کر 10-20 کلو سونا گھر میں اکٹھا کر لیں تو جانے، جھوٹ بول کر خوبصورت بیٹا پیدا کر لیں تو جانے، جھوٹ بول کر ہر سارے دشمنوں سے بری خوشحال آرام دہ زندگی گزاریں تو جانے، جھوٹ بول کر کچہری کورٹ نہ جانا پڑے، ہاسپٹل نہ جانا پڑے، فزیکل اعتبار سے ہیپینس رہے زندگی میں تو جانے۔ یہاں تو بیماری پیچھے ہے، یہاں تو آزاری پیچھے ہے، یہاں تو حسد پیچھے ہے، سماج کا جلن پیچھے ہے، دشمن پیچھے ہے، اولاد کی بغاوت پیچھے ہے، بیوی کی نافرمانی پیچھے ہے، موسم کی ناخوشگواری پیچھے ہے۔ ان سارے بیچ میں کون اچھی زندگی بسر کرے گا؟ اسی میں ہاپا تھاپی میں 100 سال گزر گئے۔ اب آیا فرشتہ، دبایا نریٹی، چلو قبرستان۔ اب وہاں جہاں گئے ہو وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کی چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں سلگی۔ حضور نے پانی اور کھجور پہ گزر بسر کیا تاکہ
कि मेरे गुलामों को जब गरीबी में ईमान बचाना मुश्किल समझ में आए तो अपने पैगंबर के 2-2 महीने के चूल्हे में आग न सुलगाना और कई कई दिन फाके से रहना, मुस्तफा की जिंदगी को देख ले, गुर्बत में जीने का हौसला मिल जाएगा।